اتنے قریب، اتنا سکون، لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ ہم نکل پڑے ان رستوں پر جہاں صرف درختوں کا سایہ اور پرندوں کی آوازیں، نو کراؤڈ، نو نوائز، جسٹ پیور نیچر۔ راستہ جتنا حسین تھا اتنا ہی خطرناک۔ ہماری بائک سلپ ہوئی، ہم گرے، مگر جو منظر آگے تھا انہوں نے سب کچھ بھلا دیا۔ ہڈن ولیج سے لے کر میجر عزیز بتی شہید کا مزار تک کا یہ سفر، لاہور کا وہ چہرہ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے تو ویلکم۔ ہم یہاں ایکسپلور کرتے ہیں پاکستان کے وہ راستے جو گوگل میپس پہ نہیں ملتی۔ رش، ہورن، دھول، ہر طرف بس بھگ دوڑ، اور پھر صرف 20-25 منٹ بعد سب کچھ چینج۔ روڈ نیرو ہوتی گئی، درخت گہرے ہوتے گئے اور شور ختم۔ یہ وہ مومنٹ ہوتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ شہر سے نکل چکے ہو۔ یہاں کوئی جلدی نہیں کرتا، نہ کوئی ہارن، نہ کوئی رش، بس ہوا اور پتوں کی خوشبو۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں، اصلی لگژری یہ نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کتنی سکون والی جگہ پہ ہیں۔ یہ راستے صرف راستے نہیں، یہ تھراپی ہے۔ اور پھر ہم ایک ایسی جگہ رک گئے جہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی آواز، صرف ایک پتلی سی روڈ جو ایسا لگتا تھا کہ کہیں درختوں کے درمیان کھو سی جاتی ہو۔ ہم اس وقت پہنچ گئے بہت بیوٹیفل جگہ، پتہ نہیں جگہ کا نام کیا ہے، لیکن ادھر بہت گرینری ہے، بہت سارے برڈس کے آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ جگہ دیکھے پالمس لگے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت بیوٹیفل جگہ ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر ایسے جگہ لوگ رہیں گے، آپ سوچے بہت اچھا لگتا صبح نکل کے ایسے نیچر دیکھنا، نیچر کے ساتھ چائے کافی صبح صبح پینا، ایسے دیکھنا اور برڈس کے آواز سننا، بہت اچھا لگتا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایسے ایریا، گرین نیچر، کوئی بھی نہیں ہے، اور صرف ہم ہیں اور ہمارا بائک۔ واو، کیسے خالی اور گرین روڈ، بیوٹیفul. Ті пальми очень красиво выглядят. زمین پر سوکھے پتے، ٹوٹی ہوئی شاخیں اور صرف پرندے اور ان کی آوازیں۔ ہم نے سوچا یوں نہ یہاں رک کے چائے پی جائے۔ اس نیچر میں چائے پینے کا مزہ ہی اور تھا۔ کبھی کبھی زندگی کے سب سے خوبصورت مومنٹس بالکل سمپل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سکون کا لمحہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بننے والا ہے۔ اور پھر گرنے لگی تھی ابھی۔ گرا بچ گیا۔ Хорошо, я телефон не уронил. Я думала, сейчас упадем. Что, весело на одной стороне пошел? Я не могу сказать. Думаю, ты, наверное,
повернуть, мы, наверное, тоже все пошли на эту сторону, я так думаю. ये देखो कैसे birds. ये birds पहली दफा मैं देख रही हूँ, आपको नजर आ रहा है ये रास्ते में. वाओ, ये देखो ब्रिज. इसके बाद हम पहुंचे एक पुराने पुल पर. मेटल और लकड़ी का बना हुआ. देखने में तो इतना पुराना लग रहा था और नीचे से आवाज आ रही थी. वाओ, कोई भी नहीं है. खूबसूरत रोड खाली. यहाँ पे варанов и варан. Не варан, а как будет ящерица? Да, комодо дрэгон शायद है, या कोई फॉक्स जैसे पिछले दफा हमने देखे फॉक्स. था जैकल था. पता नहीं क्या था, लग रहा था फॉक्स. वो जब तक कैमरा ऑन कर किया वो भाग गया. अगले लम्हे हमने एक ऐसा रास्ता देखा जो शायद इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा था. अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया वेदर. बहुत सर्दी लग रही थी मेरे पास. सर्दी का भी आता है. और ठंडे हो गए. हाँ जी, काफी ठंडे हो गए. ये देखो काऊ और एक्सप्लोर. काऊ बस पक्का चित्र. रोड बिल्कुल सीधी, लेकिन उसके ऊपर दरख्तों का एक कंप्लीट कैनपी. सूरज की रोशनी हाथों से टूट टूट कर नीचे गिर रही थी. हर किरण जमीन पे एक न्यू पैटर्न बना रही थी. बाइक पे चलते वक्त ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी फिल्म के सीन में हैं. और सबसे अजीब बात, टेम्परेचर चेंज हो गई. थोड़ी देर पहले गर्मी थी, लेकिन यहाँ हवा ठंडी हो गई. ये सिर्फ एक रोड नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस था. हर सेकंड, हर फ्रेम इतना परफेक्ट लग रहा था कि रुक कर बस देखते रहने का दिल कर रहा था. यहाँ कोई हॉर्न नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ हम और नेचर. बस टायर की हल्की सी आवाज़ और पत्तों की सरगोशी. कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ आप कुछ सोचते नहीं, बस महसूस करते हैं. और ये वो ही मोमेंट था. ठंडी दोबारा हो गई. वैसे तो वेदर गर्म हो गया था, अब एक दो दिन शायद वो अच्छा हो.
गया, पता नहीं कौन सा गाँव है. अच्छा, गाँव के रास्ते खराब है. एक ही बाइक का रोड. Что, неправильно идем? हमने जाना था इस रास्ते में, लेकिन ये रास्ता बंद है. हम थोड़ा दूर आ गया इधर. अगर इस रास्ते में हम जाते उधर बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर बहुत नज़दीक नज़र आना था, लेकिन ये बंद है रास्ता सारा. और इसलिए हम अभी सोच रहे कैसे जाए, कहाँ जाए. और मैप भी काम नहीं कर रहा. इधर गांव है, पीछे गुजर गए, 2 गांव गुजरे हैं. नहीं, ये क्या है नीचे पड़ा हुआ? हाँ, तोरी. तोरी का प्लांट अरे वाह. बहुत ज्यादा है. कैसे लाइन से नीचे लगे. हाँ, वो नीचे पड़ा है. तोरी है, तोरी भी. Необычное место. हम इस वक्त पहुंच गए, कोई खाली जगह है, हवा चल रही है. थोड़ा सा ब्रेक लिया, आप आगे जाएंगे या वापस देखते हैं कैसे. बहुत ब्यूटीफुल नेचर था इधर, और वेदर भी अच्छा है हमारे लिए. बर्ड्स की आवाज़ आ रही है. हम आगे गए, इधर इस तरह
उधर मैप में दिखा रहे हैं ये रास्ता, लेकिन उधर गए बंद रास्ता नहीं है. आप अभी रुक के देखते क्या है सिचुएशन. इधर कोई भी नहीं है, सिर्फ हम हैं. ये जगह अजीब थी, बिल्कुल सुनसान, लेकिन साथ ही बहुत खूबसूरत. एक ऐसी खामोशी थी वहाँ जो महसूस भी कर सकते हैं. जगह बहुत अच्छी है. ये क्या लगा? कोई ट्रीज लग रही. नहीं, ये नीचे ट्रीज नहीं है, क्या है? मुझे तो ट्री लग रही है. इसमें करीब करीब ट्रीज तो नहीं. कोई टमाटर नहीं है, मुझे लग रहा टमाटर लगा है. टमाटर लग रही है, ये पता नहीं क्या है. ये कौन कॉर्न और वो शुगर के एक सेम लगती है, इसलिए मुझे नहीं समझ आती क्या. ये देखता इधर भी है, टमाटर लग रही है, उनमें से नहीं अल्फॉर्म नहीं पता. ये है इसकी पत्तू. क्या, मुझे तो टमाटर लग रही है. ग्रीन चिली है. ग्रीन चिली कैसे पता था? इधर है, कहाँ पे? दिखाती हूँ. ये ग्रीन चिली है. ऐसे टमाटर भी ऐसे सेम लग रही है. ये ग्रीन चिली, सारे ग्रीन चिली लगी हुई है. आगे खरबूजे रखे हैं. मेलन. हाँ, वो एक रोड पे भी गिरा हुआ है. मुझे देखते. ये क्या है? किसी का घर है. नहीं, टैक्स से करना बैठ जो. बस गेट ही है, अंदर खाली है. अगर ऐसे जगह रहना है अच्छा लगता. सुबह निकले घर से, चाय पी ले और नेचर देख. ओ देखो कितने जमा किए हुए हैं. सारे जमा किए हुए हैं. खराब वो मुझे खराब फेंक दिया वो. सोचिए. ये किसी का घर है, इसके अंदर एनिमल्स है, काउस. रास्ता इधर ना, हम सोच रहे थे अच्छा है, लेकिन सारा रास्ता ऐसे ही खराब है. सिर्फ उस शुरू में ऐसे है, उससे ये वाला अच्छा रास्ता है. यहाँ पे मंगूस था. मखबूज इधर से गुजरे थे, लेकिन वीडियो में नहीं आए. रास्ता सही है. Oh, जी. Back on asphalt. किसी का बहुत सारा सोलर्स लगे हुए हैं. आगे क्या है? गाँव है? गाँव ही. सारे मेलन बहुत ज़्यादा है. हर जगह मेलन पता नहीं है गाँव है सिटी है, कुछ समझ नहीं आया. क्या कह रही है?
फकत ये गाँव तो नहीं लग रही, अच्छा ये गाँव है, बहुत सारे शॉप्स है इधर, पारसा भी अब आ गया है। बहुत बिजी गाँव है। गाँव का सेंटर है। हाँ गाँव सेंटर। मैं कह रहा हमने यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। इधर से लेफ्ट लेना। हाँ ऐसे बाप रे बाबा शिव है लग रही है। एक और खुला हुआ था बिल्कुल ओपन। हाँ, मैंने 2-3 देख लिए रास्ते में, ओपन सारे। गांव के बीच में ये जगह हमें नज़र आ गई। ये देखना कैसे रास्ता अच्छा बनाया ये लोग, और ग्रीनरी कैसे लगाई है, अच्छे लग रहा है, मुझे बहुत पसंद है। और कोई भी नहीं है ऐसे, अपना ट्रैफिक रश ज़्यादा हो, और हवा भी साफ होगी। ये ट्रीज मुझे बहुत पसंद है, इसमें फ्लावर्स लगती है, कभी येलो कभी पिंक। मैं अभी तक उसी सुनसान जगह के बारे में सोच रही थी कि ये अजीब सी आबादी नजर आई। ये जगह बिल्कुल न्यू लग रही थी, साफ सुथरी गलियां, छोटे छोटे घर, और हर घर के सामने छोटा सा गार्डन, जैसे किसी ने इस वीरान जमीन के बीच एक न्यू दुनिया बसा दी हो। बीच में एक सीधा खूबसूरत ब्रिक रोड, बिल्कुल परफेक्ट लाइन में, ना धूल ना टूट फूट, सब कुछ इतना नीट के यकीन करना मुश्किल हो रहा था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये सब कुछ इतनी दूर था मेन रोड से, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई शहरी रश, फिर भी इतना ऑर्गेनाइज, इतना जिंदा। एक तरफ वो पुराने गांव जहाँ वक्त रुक सा गया था, और दूसरी तरफ ये न्यू बस्ती जहाँ सब कुछ बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं जो समझ से बाहर होते हैं। ये जगह थोड़ी सी रियल थी और थोड़ी सी अनरियल, जैसे किसी ने डेजर्ट के बीच एक छोटा सा सपना बना दिया हो। मैं बस यही सोचती रह गई कि ये जगह इतनी दूर होकर भी इतनी परफेक्ट कैसे है। ओए मैं डर गई। आ जाएगा मोबाइल खाने का। खा जाएगा। अच्छा ये भी आ रहे हैं। पीछे पीछे रहो, ऊपर आ जाएगा। अच्छा ये तोड़ के दे। तरावा इंडाई कौन सी ये? वो सी किरपिची ये तरावा कौन सी दाई कौन सी? Посмотри, это кушает или... Кушает он? Давай, дай. Это, сейчас дам тебе, подожди, дай я. Это, да, сейчас, я сама оторву, дам тебе, беби. Да, возьми, беби, кушает он. Ты тоже возьми, ага, возьми, вот это большой возьми. Да, дай, ближе, беби, ближе иди, не бойся, ага. Ближе иди, дай, давай. Да, ближе. Корпа, пер. Беби, я держу твою руку, не бойся.
Надо его кушают они, видишь? Поближе иди, не бойся. Тиспейді ол, жақынырақ бар. Бер. Жақын бар. Дай, беби. Не бойся, ага. Дай, не бойся. Дай, ближе иди. Ага, вот он будет кушать, дай. Ага, да, я помогу тебе. Не бойся, вот возьмет он. Да, не бойся. Ближе иди, не бойся, он не тронет. Не укусит, вот, дай. Да, сама хочешь, дай. Дай. Хочет открыть, смотри. Видел? Хочет открыть. Давай, дай, потом идем дальше. Ладно, идем. वाओ कैसे एरिया है अच्छी вот снизу ищет еду Ты тоже дала? О, молодец. Вот смотри, как он хочет. да этот баран хотел дверь открыть дверь хотел открыть видел они там не завязаны просто ходят Ну да, все равно запас есть. Кирпичи тоже просто поставили. да просто делали чтобы не ушли они да идем चलो फिर उस छोटी सी बस्ती को पीछे छोड़ते हुए हम फिर से निकल पड़े बिना किसी प्लान के रास्ता बीच में थोड़ा खराब है लेकिन ऐसे तो ठीक है पहले तो सर्दी लग रही थी मैंने जैकेट पहन लिया अब गर्मी लग रही है थोड़ा खराब है हाँ ज़्यादा स्पीड पे तो नहीं जा सकते हाँ बस 80 या 100 की स्पीड में क्योंकि खराब आ रहे हैं ऐसे इधर कोई घर नहीं है सिर्फ एक दोनों जगह है сажают поля как называется не поняла что говоришь эти например поля как agriculture area да правильно एग्रीकल्चरल एरिया था agriculture area है ज़्यादा लोग नहीं रहते इधर सा मस्जिद है door open या बंद है ये क्या राइट्स पे भी मस्जिद है लेफ्ट पे भी मस्जिद है ये दो मस्जिद है दो मस्जिद है तो ही लखपुरी दो मस्जिद एक साथ ही रोड के आस पास दो मस्जिद हैं एक राइट पे एक लेफ्ट पे थी इधर हाँ लेकिन इधर तो लोग बहुत कम है कौन जाएगा उधर मस्जिद क्योंकि इधर एरिया ऐसी है ज़्यादा खाली है दूर बहुत कम लोग हैं। जी दूर लोग रहते दूर हैं मस्जिद बनाई है लोगों से या कोई जो सफ़र कर रहे हैं वो लोग जा सकते हैं वो दोनों तरफ हरे भरे खेत जो हवा के साथ लहरा रहे थे ये वो मंजर था जो आंखों को ठंडक और दिल को सुकून देते हैं हमारे सामने एक दरिया था या शायद एक छोटी सी नदी लेकिन जिंदा बहुत जिंदा हर तरफ परिंदे उनकी आवाज़ पानी की हल्की सी रवानी वाओ कैसे ब्यूटीफुल साउंड ऑफ बर्ड्स
क्या कहते हैं? Šutice drug druga. हाँ, वाओ, слышал? कैसे आवाज़ निकलती है बर्ड की, बहुत अच्छी। और फिर एक और खूबसूरत मंजर, कुछ भैंसे आराम से पुल क्रॉस कर रही थी, बिल्कुल बिना जल्दी के, कहाँ जा रहे हैं? जैसे उन्हें दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं। हम रुक गए, इधर भी बफलो है। बस देखते रह गए, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स प्लान नहीं किया जा सकती है, ये बस मिल जाती है। यहाँ ना कोई रास्ता, ना कोई टेंशन, सिर्फ जिंदगी थी अपनी सबसे सिंपल फॉर्म में। काऊ दो रह गए उनका, हाँ 2 काऊ पीछे रह गया। इधर उन्होंने पानी के लिए जगह बनाई है, फिल्टर लगाया, लेकिन पता नहीं फिल्टर काम करता है या नहीं। ये भी मस्जिद है, लग रही तो है मस्जिद, पता नहीं। हाँ मस्जिद है। मस्जिद बनाई। कभी कभी इंसान को सिर्फ इतना ही चाहिए होता है, एक रास्ता, थोड़ी सी हवा और ऐसे मंजर। और उस पल हमें महसूस हुआ कि शायद हम वही ढूंढ रहे थे अच्छी लग रही जहाँ है। हम अब खड़े थे। ये भी गाँव है, हाँ ये तो बहुत गंदा गाँव है। तो अभी कर लाहौर में वही यार बहुत बदबू है इधर तो, बहुत बदबू है। बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और मैं अभी करी थी, लाहौर तो साफ हो गया, पाकिस्तान साफ हो गया पहले से। बर्ड देखी, जी बर्ड का चाइल्ड। जी। उस पुल को क्रॉस करने के बाद हमने एक और रास्ता पकड़ लिया जो दरिया के साथ साथ जा रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी, दरिया नजर ही नहीं आ रहा था। पूरा रास्ता दरख्तों ने कवर किया हुआ था, इतने घने कि शाहें हमारे इतने करीब आ रही थी जैसे हमें छू रही हो। बस आवाज़ आ रही थी पानी की और परिंदों की, लेकिन मंजर छुपा हुआ था। ये भी रिवर के पास ही जगह है। ये रास्ता थोड़ा सा हिडन था, थोड़ा सा सीक्रेट, 5-6 किलोमीटर। जैसे नेचर अपनी खूबसूरती को पूरी तरह एक्सपोज नहीं करना चाहती। उधर कौन सी सिटी है? अमृतसर। हाँ अमृतसर रहता है। अमृतसर सबसे नज़दीक सिटी है इधर, फॉर लाहौर। फिर न्यू दिल्ली भी इतना दूर नहीं है। और फिर दूर से एक मंजर नजर आया जो बिल्कुल अलग था। बीच हरे भरे खेत के एक बड़ा सा सफेद घर। ये हम रास्ते में अभी जा रहे थे और ये घर नज़र आ गया, कितना अच्छा स्टाइल है, पुराना स्टाइल, इंडियन पुराना स्टाइल। ना कोई आसपास, ना कोई बाउंड्री, बस एक अकेला घर, खामोशी के दरमियान, बिल्कुल वैसा जैसे पुरानी इंडियन फिल्मों में हम देखते थे। एक पल के लिए लगा जैसे वक्त पीछे चला गया हो, जैसे ये जगह किसी कहानी का हिस्सा हो, ना कि असल दुनिया का। हमने रुककर बस उसे देखा, फिर सफ़र जारी रखा। और फिर एक छोटा सा मैजिक हुआ। एक परिंदा अचानक से हमारे साथ साथ उड़ने लगा, ना आगे ना पीछे,
بالکل ہماری سپیڈ کے ساتھ. کچھ سیکنڈز کے لیے ایسے لگا جیسے وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہو. یہ ہے میجر عزیز بتی شہید کا مزار. آج بچوں کو بھی یہاں لائے تاکہ وہ صرف یہ جگہ نہ دیکھے بلکہ سمجھ سکے کہ اصلی ہمت کیا ہوتی ہے. 1965 کی جنگ، لاہور کے قریب برکی کا علاقہ. یہاں ہر طرف گولیاں چل رہی تھی، توپخانہ گرج رہا تھا اور زمین لرز رہی تھی. اس سب کے درمیان ایک افسر اپنی پوسٹ پہ کھڑا تھا، نام میجر عزیز بتی. انہیں حکم دیا گیا کہ اپنی پوزیشن ہولڈ کرنی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو یہ جگہ نہیں چھوڑی جائے گی. 5 دن اور 5 رات، نہ نیند نہ آرام نہ پیچھے ہٹنا. دشمن بڑھتا گیا، فائرنگ تیز ہوتی گئی، لیکن وہ وہیں کھڑے رہے اپنی سپاہیوں کے ساتھ ان کے بالکل آگے. انہوں نے صرف کمانڈ نہیں دی، انہوں نے لیڈ کیا فرنٹ لائن سے. جب حالات اور زیادہ خطرناک ہوئے تو انہیں کہا گیا کہ پیچھے آ جائے، لیکن جواب صرف اتنا تھا: یہ جگہ نہیں چھوڑی جائے گی. ان کا کھڑا رہنا صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، یہ نہ صرف ان کی بٹالین بلکہ پورے لاہور کے لیے شیلڈ بن گیا. جب تک وہ وہاں تھے دشمن کو آگے بڑھنے سے روکا گیا اور اپنی فورسز کو وقت ملا پوزیشن مضبوط کرنے کا. پھر ایک لمحہ آیا جب دشمن کا شیل ان کے قریب گرا اور وہ زخمی ہوئے، لیکن اس وقت بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. ان کا آخری لمحہ بھی یہاں بیاربی کنال پر ڈیوٹی پر گزرا. یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک انسان کا اپنی فرض کے ساتھ وعدہ تھا. کچھ لوگ اپنی جان دے کر ہمیشہ کے لیے مثال بن جاتے ہیں، لیکن ان کی قربانی آج بھی زندہ ہے. آج یہ راستہ، یہ سکون، یہ آزادی، یہ سب کسی کی قیمت پر ملا ہے. یہ مزار یاد دلاتا ہے کہ یہ زمین کسی کی امانت ہے. میں سرحد کی زیرو لائن پہ کھڑی تھی، جہاں مٹی ایک ہے مگر دنیا دو. میرے سامنے ایک ایسا مندر تھا
جسے میں چھو تو نہیں سکتی تھی مگر اس کی خاموشی کو محسوس کر سکتی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے روکا گیا کیونکہ میں تاریخ کے بہت قریب کھڑی تھی۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس فوربٹن سرحد پہ زندگی کیسے تمی ہوئی ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔